The units of consumption shall be consumed continuously without any time gap. Without any gap, you should consume one after the another, like this. One after the another. See how fantastically she is eating the cookies. One after the another. Okay, no time gap. Okay, next assumption of the law. Reasonability. This point says that units of consumption should be reasonable in size. It should not be very small, it should not be very big. अभी जैसे अपने घर पे कोई मेहमान आता है, हम उनको अगर चाय ऑफर करते हैं, तो we go to the kitchen and bring one cup of tea, reasonable size. Cup of tea. Do you go to the kitchen and bring bucket of tea? Very big? No. Do you go to the kitchen and bring spoon of tea? Yela chai piyo? No. We bring cup of tea. Right? So unit should be reasonable in size. It should be reasonable in size. जैसे it should not be very small. ये जो चना सिंगदाना मैं बता रहा हूँ इतना छोटा छोटा रहेगा तो you cannot calculate utility. हर एक यूनिट का यूटिलिटी कितना रहेगा हमको पता नहीं चलेगा. And if it is very big, even for this we cannot calculate the utility because I cannot expect the consumer will consume one watermelon after another, one watermelon after another. वो एक भी पूरा नहीं कर सकेगा because it is very big. So it should be reasonable, not very big, not very small. Next assumption is constancy. Constancy of what? Constancy of taste and habits of the consumer. The taste and habits of a consumer should remain constant. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कल के एग्जाम्पल आपको ब्राह्मण बताया था. देखो मैंने उसमें बहुत स्पेसिफिकली बताया था कि नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स लाइक एग्स उसका इसको यूटिलिटी नहीं रहेगा, नो यूटिलिटी. मगर अगर ये अपना हैबिट चेंज कर देता है, टेस्ट चेंज कर देता है एंड ही स्टार्ट्स ईटिंग दैट, देन ही मे गेट यूटिलिटी. ओके, तो टेस्ट एंड हैबिट शुड रिमेन कांस्टेंट. हमने देखा था ही इज गोइंग टू कंज्यूम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसका उसको यूटिलिटी रहेगा. ही शुड नॉट चेंज हिज हैबिट्स, अदरवाइज द लॉ विल अप्लाई टू हिम. Okay, next is divisibility. This assumption says that the commodity should be divisible into small quantities. कभी कभी अभी जैसे मैंने बताया था आपको वो वाटरमेलन बड़ा था, but I can divide that watermelon into small parts, right? So I can divide it. जैसे एक कोल्ड ड्रिंक का बड़ा बॉटल है, I cannot expect a consumer can consume one bottle after another, but I can divide this into different glasses. So I can take utility of one glass, first glass, second glass, third glass, fourth glass, fifth glass, sixth glass. The product is divisible into small proportion. ऐसा assumption है. नेक्स्ट assumption is single want. इसमें हम ये assumption पे जाएंगे that a commodity should satisfy single want of a person. It should not satisfy multiple want. A commodity should satisfy single want of a person. It should not satisfy multiple wants of a person. Constant marginal utility of money. Constant marginal utility of money. The law assumes that the marginal utility of money should remain constant. What does this mean? जैसे अपना लॉ ये क्या बोल रहा है? More we get, less we want. बट मनी के लिए क्या रहेगा? व्हाट विल बी फॉर मनी? टेल मी. मोर वी गेट, मोर वी वांट, राइट? So the law assumes that
marginal utility of money will neither increase nor decrease. It will remain constant. It should remain constant. The next one. Here, those assumptions are over. Now, आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, दैट इज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू. एक्सेप्शंस. ये एक्सेप्शंस क्या है? तो एक्सेप्शंस ये कोई ऐसी चीजें हैं, ऐसी एक्टिविटीज है जिसके ऊपर अपना लॉ काम नहीं करता है. अपना लॉ क्या बोलता है? मोर वी गेट लेस वी वांट. बट एक्सेप्शंस में कैसा रहेगा? मोर वी गेट मोर वी वांट. दे आर एक्सेप्शंस, मतलब इनके ऊपर अपना लॉ काम नहीं करेगा. तो ऐसे क्या क्या एक्सेप्शंस? लेट अस डिस्क्राइब देम वन बाय वन. द फर्स्ट एक्सेप्शन इज हॉबीज. देखो, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास हॉबी रहेगा. आई हैव हॉबी ऑफ collection of stamps. I collect variety of stamps, particularly Indian stamps. I collect coins. Stamp है, coins है, I collect. अभी क्या होता है कि मेरे इस हॉबी में कैसे हो रहा है कि more I get stamp, more I get coins, I want more. I don't want less. And therefore it is an exception. बट इकोनॉमिक्स क्या बोलता है कि ये जो हॉबी है, ये एक्सेप्शन जरूर है, बट ये रियल एक्सेप्शन नहीं है. एक्सेप्शन है बट रियल एक्सेप्शन नहीं है. क्यों? क्योंकि हॉबी लैक्स होमोजिनिटी. हॉबी लैक्स होमोजिनिटी मतलब क्या? कि अगर मुझको आप सेम स्टैम्प, सेम कॉइन बार बार दोगे, आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड. आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड टू कलेक्ट दोज कॉइन्स एंड स्टैम्प्स. इट लैक्स होमोजिनिटी. अगर इस पे होमोजिनिटी डाल देंगे तो इस पे भी लॉ काम करेगा. माइजर, कंजूस. देखो कैसे होता है. माइजर, जो कंजूस पर्सन होता है, उसका कैसे रहता है? उसको कुछ भी चीज थोड़ी मिल जाए, पैसा भी थोड़ा मिल जाए, he wants more. More he gets, more he wants. So it is an exception. But economics बोलता है रियल एक्सेप्शन नहीं है. क्यों? तो he is not rational. Miser is not a rational person. अगर ये रैशनल होगा तो इसके ऊपर ये लॉ काम नहीं करेगा. सॉरी, काम करेगा, मगर ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये रैशनल नहीं. देन थर्ड वन, एडिक्शन. जैसे अ ड्रंकार्ड, बेवड़ा, मैंने पहले भी बताया था आपको. इन लोगों को कैसे होता है? मोर दे गेट मोर दे वांट. मोर दे गेट मोर दे वांट. बट अगेन मैंने वो डिस्कशंस के वक्त में भी बोला था, ही इज नॉट अ रैशनल पर्सन. He is not a normal person. Therefore, this is not a real exception. Exceptions है मगर real exception नहीं है, क्योंकि ये कुछ conditions follow नहीं कर रहे हैं. Power. देखो, किसी person को power gain करके आगे बढ़ना है, more power he gets, उसको जैसे जैसे आगे बढ़ने मिलता है, more power he gets, more he wants to go ahead. और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है. But again, it lacks the condition of rationality. So it is not a real exception. Money. जैसे मैंने बताया, more we get, more we want. So it is an exception to the law. More we get, more we want. Now, next exception we have is music. अगर आप कोई म्यूजिक सुन रहे हो,
when you are listening some music, more you listen, आपको और सुनना मजा आएगा. You will enjoy listening to the music. इसीलिए it is an exception. But dear friends, याद रखो, it is not a real exception. क्यों? तो अगर मैं आपको सेम म्यूजिक या सेम गाना बार बार सुनने को बोलूं, will you enjoy that? No, you will not enjoy that. So it is not a real exception. Reading. This is last point. Abhi, I can see that you are an exception. Reading for a scholar. Okay. Reading for a scholar. Who is scholar? Are you a scholar? No. Am I a scholar? No. Scholars are the persons who are conducting some research. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाई कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. तो रीडिंग फॉर अ स्कॉलर इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ, क्योंकि उसको एक बुक मिलेगा, वो और एक बुक पढ़ते जाएगा. मोर दे रीड, मोर दे वांट टू रीड. मोर दे रीड, मोर दे वांट टू रीड. सो दैट इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ. तो ये अपने एक्सेप्शंस कंप्लीट हो गए. एंड हियर the discussion part of our lecture today is over. So I have described the law, its assumptions and its exceptions. तो अगर आपको इन तीन चीज में रिलेटेड कुछ डाउट्स है, so you can ask me in next 5 minutes. एक एक करके पूछो. और जो भी डाउट पूछ रहे हो, मार्जिनल यूटिलिटी, प्रोडक्ट का खुद का जो यूटिलिटी रहता है. अभी जैसे आपके पास एक ग्लास पानी है, तो वो एक ग्लास का पानी का खुद का जो यूटिलिटी रहेगा, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी. या आप एक एप्पल खा रहे हो, तो एक एप्पल का जो यूटिलिटी है वो मार्जिनल यूटिलिटी. दूसरा एप्पल खाओगे तो उसका जो यूटिलिटी है वो उसका मार्जिनल यूटिलिटी. इज दैट ओके? Sapin, you were typing something. Sapin, ask. एक एक करके टाइप करो रे. मल्टीपल यूजर्स में मुझको पता नहीं चलेगा. Cardinal measurement we discussed yesterday. You were absent yesterday. Cardinal measurement मतलब measurement in terms of numbers. जैसे what is your age, Sapin? Sapin, what is your age? Tell me. 17. आपने आंसर किस में दिया? नंबर्स में. So that number measurement is called cardinal measurement. Is that okay, Sapin? Okay, next, Riddhi Chavan, you are typing something. Oh, that I will discuss it tomorrow. आपको आपके पास नोट्स आपके पहुंचेंगे. नोट्स के लिए आप सब लोगों ने आपके फोन पे ऐप डाउनलोड कर लेना. ऐप डाउनलोड कर लेना अपने ऐप पे, अपने यहाँ पे. विकास सर, आर यू देयर इन दिस बैच? प्लीज वेट. टाइपिंग प्लीज मत करो कोई टाइप. लेट विकास सर, आर यू देयर इन दिस बैच? आप
अपने जिनको ऐप मिल गया रहेगा, हमने मैसेज भी भेजा है, अगर आपको ऐप मिला नहीं है तो प्ले स्टोर पे जाके आप माई क्लास एडमिन ऐप को डाउनलोड कर लेना, जिनके पास नहीं है वो लोग, एंड वहां पे आपका सेम लॉगिन एंड पासवर्ड चलेगा। ठीक है, डाउनलोड करके लेना। उसके ऊपर ये ऐसे वाला सिंबल रहेगा, देखो ऐसा वाला सिंबल रहेगा माई क्लास एडमिन का, वो वाला ऐप डाउनलोड करना। आर यू सीइंग इट ऑन माई स्क्रीन? आई एम रोटेटिंग। ऐसा वाला ऐप रहेगा, वो ऐप डाउनलोड कर लेना। उसमें मैं आपको कल नोट्स शेयर करूंगा। ओके, अदर लीन घोषाल, यू हैव सम डाउट, आस्क। आई कैन नॉट रीड इट, टाइप इट अगेन। लीन, टाइप इट अगेन, आई कैन नॉट रीड दैट। वैभवी शिंदे, आई विल गिव यू टाइम टू टाइप, आप बाद में टाइप करो। Lynn Goshal, please type it again. I cannot see that what you have typed. खाली आपका नाम दिख रहा है मुझको, एंड इफ टोटल यूटिलिटी खाली उतना ही दिख रहा है। Where it is specified total utility determines value in use. मैंने ऐसा कब बोला, कहां बोला? I have not said it determines value in use. I have nowhere said that. It is just utility, it's not total utility. Usefulness is value in use. वो एक आगे का कंसेप्ट है लीन घोषाल, जहां पे हम लोग डिटरमाइन करेंगे द कंसेप्ट कॉल्ड एज पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। ये एक अलग सा कंसेप्ट है कॉल्ड एज पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, जहां पे वी आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। तो ये दो अलग अलग कंसेप्ट है, वो मिक्स एंड मैच हो जाएगा। देयरफॉर आई हैव अवॉइडेड दैट। सो for this point of time, you ignore that statement from the textbook and move on. उसके लिए आपको पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू में जब सिखाऊंगा उसके बाद में समझेगा। सर प्लीज, संगानी जय सर प्लीज, उतना ही आया है, नथिंग एल्स हैज कम ऑन माय स्क्रीन। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला मैं खाली आपको स्क्रीन पे बता दूं, आप लिख लोगे? लिखो मार्जिनल यूटिलिटी MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1, TUN माइनस 1। वैभवी शिंदे, आपका डाउट मेरे सामने आया है। ऑनलाइन लेक्चर यू विल हैव टू लॉग इन थ्रू वेब लिंक ओनली टिल फर्दर नोटिफिकेशन। ऐप के अंदर हमने वो कंसेप्ट डाल दिया है ऑनलाइन लेक्चर का, बट इन सम मोबाइल्स इट इज रनिंग एंड सम मोबाइल्स इट मे नॉट रन। सो बेटर कम थ्रू वेब लिंक्स ओनली, क्योंकि उस ऐप के अंदर हम उस कंसेप्ट को अपग्रेड कर रहे हैं। वी आर अपग्रेडिंग दैट, so please log in through web links only for the lecture. Okay, Alvis, Riddhi Chavan, you asked something. Reasonability का मतलब बोलते हैं reasonable size. It should not be very big. अभी जैसे when someone comes to your home, you give tea in a cup. Tea or a coffee, you will give it in a cup. Will you give them in a bucket? No. Will you give them in spoon? No. So it should not be very small like spoon, should not be very big like bucket. It should be reasonable like cup. Alvis, is that okay? Rationality, रिद्धि चौहान, रैशनैलिटी में कैसा assumption है कि the law will be applicable on rational persons only. अपना लॉ क्या बोलता है? more we get less we want. मगर अभी जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ड्रंक कार्ड, मतलब आप जिसको
बम्बईट लैंग्वेज में बेवड़ा बोलते हो, उसको अगर आप दारू दोगे, मोर ही गेट्स मोर ही वांट्स, तो इसके ऊपर ये लॉ काम नहीं कर रहा है। क्यों? तो वो रैशनल नहीं है, वो रैशनल नहीं है, इसके लिए काम नहीं कर रहा है। पीने के बाद कोई नॉर्मल नहीं रहता है। इज दैट क्लियर रिद्धि टू यू? Okay, any other doubts? Leroy, you are typing. Dhun, you are typing. Fast पूछो, 2:15 I am scheduled for other lecture. Marginal का example. Marginal का example मतलब what marginal you want? There are lot many things marginal. Marginal cost है, marginal utility है. आपको exact किस चीज का marginal का बता रहे हो आप? लोपेस लिरॉय, सर अल्फ्रेड, खाली इतना ही पढ़ रहे हैं। धुन, मार्जिनल यूटिलिटी अगर आप पूछ रहे हो तो उसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी हर एक प्रोडक्ट का होता है, जो खुद का प्रोडक्ट का खुद का जो यूटिलिटी होता है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। लेरॉय, आई कांट रीड यू, आई कैन जस्ट रीड सर अल्फ्रेड। इट्स अल्फ्राइड, यू हैव रिटन रॉन्ग, इट्स अल्फ्रेड। अल्फ्रेड मार्शल लॉ पूरा नहीं हो सकता अभी बेटा। I have discussed the entire law. The law says more we get, less we want. जितना जितना आप कंजम्पशन बढ़ाओगे तो उस कंजम्पशन में से मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाएगा। As we go on consuming more and more of the commodity, the utility what we will get will start diminishing, will go on diminishing with the increase in consumption. That is the law. Okay, any other doubts? Okay, it's time up for ending of the lecture. On Monday at the same time, you will have OCM lecture. At same time, you will have OCM lecture. I repeat, on Monday. Tomorrow, there will be no lecture for your batch. Tomorrow, no lecture for your batch. Monday, OCM lecture for all of you. Okay, bye for now. See you on Monday.